Hello everyone. Today we are going to discuss a very interesting chapter, that is the microbial world. As living organisms show a great variety in shape and size, some organisms are quite big such as elephant and some are very small like ant. But some organisms are also exist in nature that are too tiny to be seen with the unaided human eyes. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते, बट फिर भी वो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, हमारी एनवायरनमेंट में रहते हैं. सो वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. To make them visible, a special instrument known as microscope is used. Okay. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो हाई होता है. लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप विच मेक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विजिबल easily. Microorganisms adapted to inhabit almost every corner of the world. If we can say that where microorganisms are found, then there is no place where we can't find them. They are present everywhere on the earth. They live in the oceans and lakes where they provide a valuable food source for other organisms, and they can live on land where they may decay dead organic material, thus recycling valuable nutrients. They may even live within the body of other organisms. So, we have several reasons to be interested in the study of microorganisms. The branch of science that involves the study of microorganisms is called microbiology, and the scientist, the person who are dealing with the microorganisms, are called microbiologist. Okay, so let us understand about the microorganisms. There are certain characteristic features which make microorganisms different from other living organisms. First characteristic is that they are too tiny to be seen with normal human eyes. Next characteristic we will discuss about microorganism is that they can even survive in extreme environmental conditions such as extreme heat and cold, which may seem inappropriate for the human beings. Now the question is how microbes survive in these conditions. कैसे इतनी extreme environmental condition में भी microorganisms survive कर पाते हैं? Because they form a hard outer covering called cyst. वो अपनी बॉडी के आउटर साइड पर एक ऐसी हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको सिस्ट बोला जाता है, विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम हार्श कंडीशंस, जो उनको इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा कर रखती है. उस सिस्ट के अंदर वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. उनकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इनएक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे मे अकर एज अ सिंगल सेल, मीन्स दे कैन बी unicellular and they can be multicellular. Unicellular means single cell organisms, and multicellular those organisms which contain more than one cells. They are called multicellular. And some microbes can also found together in clusters, and their cluster is also known as colony. कॉलोनीज में भी मिलते हैं. आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब हैं जो मोस्टली कॉलोनीज में ही पाए जाते हैं. ओके, एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे कैन बी बेनिफिशियल एंड दे कैन हार्मफुल ऑल्सो फॉर अस. वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. वो आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और उसकी फंक्शनिंग के साथ पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, किस तरह से बेनिफिशियल हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और हार्मफुल कंडीशंस क्या है उनकी जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है. Now in next topic we will discuss about the classification of microorganisms. Microorganisms have been classified into 5 main types. Number 1 bacteria, number 2 fungi, number 3 protozoa, number 4 algae, and number 5 virus. Now we will discuss about all the 5 classes of microorganisms.
There are certain characteristic features which make microorganisms different from other living organisms. First characteristic is that they are too tiny to be seen with normal human eyes. Next characteristic we will discuss about microorganism is that they can even survive in extreme environmental conditions such as extreme heat and cold, which may seem inappropriate for the human beings. Now the question is how microbes survive in these conditions. कैसे इतनी extreme environmental condition में भी microorganisms survive कर पाते हैं? Because they form a hard outer covering called cyst. वो अपनी body के outer side पर एक ऐसी hard covering बना लेते हैं जिसको cyst बोला जाता है, which protect them from harsh conditions, जो उनको इन extreme environmental conditions से बचा कर रखती है. उस सिस्ट के अंदर वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. उनकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इनएक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे मे अकर एज अ सिंगल सेल, मीन्स दे कैन बी unicellular and they can be multicellular. Unicellular means single cell organisms, and multicellular those organisms which contain more than one cells. They are called multicellular. And some microbes can also found together in clusters, and their cluster is also known as colony. कॉलोनीज में भी मिलते हैं. आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब हैं जो मोस्टली कॉलोनीज में ही पाए जाते हैं. ओके, एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे कैन बी बेनिफिशियल एंड दे कैन हार्मफुल ऑल्सो फॉर अस. वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. वो आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और उसकी फंक्शनिंग के साथ पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, किस तरह से बेनिफिशियल हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और हार्मफुल कंडीशंस क्या है उनकी जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है. Now in next topic we will discuss about the classification of microorganisms. Microorganisms have been classified into 5 main types. Number 1 bacteria, number 2 fungi, number 3 protozoa, number 4 algae, and number 5 virus. Now we will discuss about all the 5 classes of microorganisms. Now in next topic we will discuss about the classification of microorganisms. Microorganisms have been classified into 5 main types. Number 1 bacteria, number 2 fungi, number 3 protozoa, number 4 algae, and number 5 virus. Now we will discuss about all the 5 classes of microorganisms. So first we will discuss about bacteria. Bacteria, or singular form is bacterium, are unicellular tiny organisms. Unicellular होते हैं, single celled होते हैं. They live together in colonies of millions. That means they are found forming clusters. Clusters में मिलते हैं, जो हमने बात की थी characteristic features में कि वो हमेशा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्लस्टर में मिलते हैं. ओके, दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसीलिए हैं क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं. हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में का क्लास है बैक्टीरिया, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं. ओके, दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस. अगर बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया हर जगह मिलता है. बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर of the earth. Most of them are harmless but few of them are harmful. ज़्यादातर तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मलेस ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं बैक्टीरिया की जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं, इन्फेक्शन कॉज करती हैं, सच एज कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस विच आर बैक्टीरियल डिजीज. Cholera is caused by a bacteria known as Vibrio cholerae, and tuberculosis is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. Now if we discuss about the shapes and size, their size may vary from 0.2 micron to 2 micron,
and based on their shapes they are further classified into 4 types. Number 1 are spirilla. Spirilla are spiral bacteria, spiral shaped bacteria. Next one cocci, sphere shaped bacteria. Next one bacilli, rod shaped bacteria. And last one are vibrios, comma shaped bacteria. Okay. Next we will talk about viruses. Viruses और singular term virus are extremely tiny organisms. अगर साइज की बात करते हैं तो सभी क्लासेस में देखा जाए तो सबसे छोटा जो साइज होता है, इन सबसे भी छोटा साइज वायरसेस का होता है, दैट कैन नॉट बी सीन विद अ सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी वायरसेस जो हैं वो विजिबल नहीं हो पाते. So they can only be observed by a special microscope which is known as electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसकी हेल्प से जो हमारा वायरल स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो जाता है. ओके. दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पास. दिस इज़ द रीज़न वो अपनी स्ट्रेन को चेंज करते रहते हैं पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर. That contains some genetic material surrounded by a protein cover. इनका जो genetic material होता है उसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है. ओके. नाउ अगर बात करते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो उनकी सिचुएशन के ऊपर मैटर करता है. बिकॉज जब वो होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, तो दे आर नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं. लेकिन जैसे ही उनको होस्ट बॉडी मिल जाती है दे बिकम लिविंग, वो लिविंग हो जाते हैं. इसीलिए वी कंसीडर दैम एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक. अगर हमें एक कॉमन टर्म, एक सिंपल लाइन में वायरसेस को डिफाइन करना होता है तो वी कैन से दैट वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. नाउ मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर हार्मफुल. ज़्यादातर हम वायरसेस जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं क्योंकि सीरियस इन्फेक्शंस हमारे अंदर कॉज कर सकते हैं. ओके. बिकॉज ऑफ देयर पैरासिटिक नेचर दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. मोस्ट ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम फ्लू और कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड से हम ज़रूर सफ़र करते हैं कभी ना कभी लाइफ में. इट इज़ कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस की वजह से ही होता है. बाकी बहुत सारी डिजीज़ हैं, लाइकवाइज पोलियो है and swine flu, bird flu, dengue, chikungunya. These are some of the infections which are caused by virus. Okay. Some plants disease are also there, tobacco mosaic virus and tomato spotted wilt virus. Okay, that are caused due to virus. Okay. Some viruses are also present which can infect bacteria also. कुछ viruses ऐसे भी होते हैं जो bacteria को infect कर सकते हैं. Okay. These viruses are called bacteriophage. बैक्टीरियोफेज टर्म उनको इसीलिए दी गई है, बैक्टीरिया ईटर, द फेजेस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट कैन ईट बैक्टीरिया. ओके. बैक्टीरियोफेजेस आर फाउंड इन गंगा रिवर वाटर ऑल्सो. बैक्टीरियोफेज जो है वो गंगा वाटर जो है उसमें बहुत अमाउंट में पाया जाता है. वहाँ पर वो जितने भी आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर को स्पॉइल कर रहे हैं, उनको वो वहाँ पर टाइम टू टाइम ईट करते रहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न जो गंगा वाटर होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता. वी कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. Our next class is of protozoa. The word protozoa means little animals. That means इनके कुछ characteristic features जो हैं वो animals से match करते हैं कहीं ना कहीं. Protozoa और singular form is protozoan are unicellular organisms. Unicellular हैं, single cell organisms हैं that have animal-like characteristics. Some of the characteristics which are animal-like are they do not have a cell wall. Animal cells की तरह इनके पास भी cell wall नहीं होता. They lack chlorophyll. इनके पास chlorophyll भी नहीं होता. Animal cells के अंदर भी chlorophyll नहीं होता. They also can't perform photosynthesis process. And next characteristic is that they can move around to capture food. They can move from one place to another. एक place से दूसरे place पर जा सकते हैं to capture their food. ओके. बात करिए अगर उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. अपने न्यूट्रिशन के लिए
दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं. सम ऑफ देम आर पैरासिटिक. ज़्यादातर जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासिटिक ही होते हैं. लाइकवाइज दे नीड अ होस्ट बॉडी टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सम ऑफ द पैरासाइट्स आर प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया डिजीज़ कॉज करते हैं. प्लाज्मोडियम आपका जो प्रोटोजोआ है वो मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है. और ये प्लाज्मोडियम जो होता है इसको 2 होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर 1 इज मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज, एंड सेकेंड होस्ट बॉडी इज ह्यूमन. तभी ये अपनी जो लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट कर पाता है. ओके. प्रोटोजोआ जो होते हैं एक्वेटिक नेचर के होते हैं. दे आर फाउंड only in aquatic habitat. Some common example of protozoa are Paramecium, Trypanosoma and Amoeba. They are found in colonies. ये colonies में मिलते हैं, cluster form में मिलते हैं. Okay. Next class is of algae. Algae or singular form alga are simple plant-like organisms. प्लांट की तरह की उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. एज दे हैव सेल वॉल्स, उनके पास सेल वॉल होती है लाइक दैट ऑफ प्लांट सेल्स. दे पोजेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी उनके पास होता है विच कैन हेल्प देम टू मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. बात करते हैं अगर उनकी हैबिटेट की, तो दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज एंड मॉइस्ट प्लेसेस. लाइकवाइज मॉइस्ट सॉइल, ponds, lakes, rivers, hot springs, seas, wastewater, etc. Okay. And some of the algae are unicellular. कुछ algae ऐसी होती हैं जो unicellular होती हैं और micro algae term उनके लिए हम use करते हैं. जो unicellular algae होती है we use the term micro algae for them. Example is Chlamydomonas. Chlamydomonas एक ऐसी algal species है जो कि unicellular होती है. Okay. नेक्स्ट कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो मल्टी सेल्यूलर होती हैं. दे आर मल्टी सेल्यूलर सच एज वॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड स्पायरोगायरा. ओके. दे आर मल्टी सेल्यूलर एल्गी एंड दे आर क्लासिफाइड एज मैक्रो एल्गी. जो आपकी मल्टी सेल्यूलर एल्गी होती हैं वी कॉल देम मैक्रो एल्गी. ओके. अगर बात करें सभी एल्गी में, तो जो स्पायरोगायरा होती है, स्पायरोगायरा जिसको हम कॉमन टर्म्स में काई भी बोलते हैं, इट इज द एल्गल स्पीशीज विच कैन बी सीन बाय अनएडेड ह्यूमन आइज. हम उसको नॉर्मल आइज से देख सकते हैं. ओके. स्पायरोगायरा आपकी जो होती है इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी. इसकी जो फॉर्म अगर देखा जाए, बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए, तो फिलामेंट्स टाइप बॉडी इसके अंदर मिलती है विच हैव सिमिलर सेल्स दैट आर जॉइंड एंड टू एंड इन लॉन्ग चेन. एक साथ जुड़ी रहती हैं जो एक लॉन्ग चेन बनाती है एंड अपीयर लाइक फिलामेंट्स, फिलामेंट्स की तरह अपीयर होती हैं. ओके. ये तो हमने बात की है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में. अगर बात करते हैं हम बेनिफिशियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है. लाइकवाइज इफ़ वी विल टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस विच इज़ फाउंड इन आवर मिल्क. लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो हमारे मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन, देयर इज़ अ प्रोटीन इन आवर मिल्क विच इज़ नॉन एज कैसीन. लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कोएगुलेशन कर देता है स्टार्ट. कैसीन को जो है बाइंड अप करने लगता है और जिसकी वजह से मिल्क जो है आपका एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस. जिसके साथ जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है हमारे मिल्क में, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में. एंड दिस प्रोसेस बाय विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोगों के काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं. लाइकवाइज अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं जितने भी, वो भी आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं. एंटीबायोटिक्स जो कि हम किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. वो डिज़ीज़ हम ह्यूमंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी. ओके. नेक्स्ट क्लास इज आर फंजाई. फंजाई और सिंगुलर फॉर्म फंगस आर non-green organisms with bodies usually made of thread-like structures called hyphae. इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है
वो हाइफी से मिलकर बना है. हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, दे वर वंस कैटेगराइज एज नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जो कि प्लांट्स के पास होता है, विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो दे lack chlorophyll, so they cannot perform photosynthesis process. And their similar characteristic which make them considered as plants once time because they have cell walls. they have cell walls, उनके पास cell walls होती है, plants के पास भी cell wall होती है. but the only difference is that कि उनकी cell wall plant cell wall से थोड़ी सी different होती है. अगर देखा जाए कि उनकी structural point of view से, तो उनकी जो सेल वॉल्स होती है वो प्लांट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन उनके पास सेल वॉल्स होती है लाइक दैट ऑफ प्लांट्स. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई आर क्लासिफाइड एज सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. सेप्रोफाइटिक फंजाई वो होती है जो हमेशा डेड और डिकेइंग मैटर पर ही एक्ट करती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है. नेक्स्ट पैरासिटिक वो होती हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है होस्ट बॉडी की, एक लिविंग बॉडी की, जहाँ पर रहकर वो होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है. ओके, फंजाई आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ऐसे प्लेसेस पर बहुत ग्रो करती है जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी प्रेजेंट हो और मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, वाटर कंटेंट होना चाहिए. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट. ईस्ट का जो बेनिफिशियल यूज़ है वो बेकरीज में बहुत यूज़ होता है, टू मेक डोसा, इडली, ब्रेड. एंड next example is rhizopus. Rhizopus the bread mold. Agaricus, agaricus means mushroom. agaricus जो है मशरूम जो है वो हमारी मैक्रोस्कोपिक फंजाई है जो कि हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं. ओके, बाकी जितनी भी आपकी फंगस हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होती हैं. दे कैन ओनली बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम. पेनिसिलियम इज द मोस्ट स्टडीड फंजाई, क्योंकि पेनिसिलियम ही वो फंजाई है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी. ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी जिसको नाम दिया गया था पेनिसिलिन, विच इज़ वेरी इफेक्टिव टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. ओके, नाउ एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट को छोड़कर जितनी भी सारी फंजाई हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर होती हैं. ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर फंजाई है. ओके,